گا کپڑے کے مار. 20 روزہ ہوتے ہوتے لے کشن گنج یہاں نہیں تو ایک مرتبہ چلو پانچ پورا دیکھ لیں. یہاں نہیں چلو اسلام پور میں دیکھ لیں. عجب تماشا. سال کوئی بھی بیوی کو لے کے بازار نہیں جانا. ایک سال رکو, ایک سال. 2026 میں بیوی کی محبت کو جانچ کرنے کے لیے امسال آپ لوگوں کو ایک نسخہ دیتے ہیں. امسال کوئی بھی اپنی بیوی کو لے کے کپڑا دکان مارکیٹ مول لے کے مت جانا. تو خود جانا, بیوی کا کپڑا عید میں خرید کے لانا, بیوی کے ہاتھ میں دینا اور دے کے خالی اس کا منہ ہوا دیکھنا. کچھ مت کرنا, خالی اس کا منہ دیکھنا. آپ لوگ نہیں, آپ لوگ دودھ کے دھلے ہوئے, آپ لوگ کی بات نہیں بتا رہے ہیں. وہ پورنیہ موڑ سے اس پار آپ لوگ سے ماشاء اللہ یہ محبت ہے. ان لوگوں نے دل سے کیا ہے, بے شک ان لوگوں نے جلسہ دل سے کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. آئیے ہم آپ سب مل کر سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ہیلو سنیے, حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں. حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں. زمین پہ رہنے والے آسمان کی بات کرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اور فرشتے تذکرہ کرتے ہیں جنت میں مدینے کا. ارے کہاں کے رہنے والے ہیں, کہاں کی بات کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. کہاں کے رہنے والے ہیں, کہاں کی بات کرتے ہیں. اور حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں, کہاں کی بات کرتے ہیں. تھوڑی دیر سنیے, چونکہ آنن فانن میں اتنا بڑا جلسہ آپ نے سجا ہی لیا. اور کیوں نہ سجے, جہاں عشق مصطفیٰ شامل ہو وہاں پہاڑ بھی قدموں میں آ جاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. چونکہ محبت جو ہوتی ہے نا حضرت, محبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک بچہ گھر کے اندر ہوتا ہے, ایک ماں کھیت میں ہوتی ہے, باڑی میں ہوتی ہے. بہت آواز شور و گل ہو لیکن ماں کام میں لگئی ہوئی. بہت شور و گل ہے, بہت آواز ہے, بج رہا باجا, لیکن ماں کام میں لگی ہے. لیکن اس کے بچے کی آواز اگر تھوڑی سی کان میں مل جائے تو ماں کا کان کھڑا. جی بے شک, یہ محبت ہے, اسی کو محبت کہتے ہیں. بے شک ماں فوراً جاتی ہے, اب بچے کو سینے سے لگاتی, یہ محبت ہے. تو آپ نے نبی کی محبت میں اتنا بڑا جلسہ سجایا. تھوڑی دیر سنیے ماں بہن, آپ کے لیے بھی دو چار باتیں, نوجوانوں آپ کے لیے بھی چند باتیں. چونکہ یہ مہینہ تیزی سے گزر گیا اور لگ بھگ مجھ کو لگتا ہے کہ آج کی تاریخ ہے 7 تاریخ ہے, 8 تاریخ سمجھ لیجیے, اور 8 دن بچا رمضان گھسنے میں. بڑی پوتر پاک مہینہ گھسنے والا. اس مہینے سے افضل اور مہینہ ہے کہاں. اس مہینے میں آپ جانے والے. تھوڑی دیر سنو نوجوانوں, تو بھی سن, صرف سنو اور مت عمل کرو. عمل زندگی میں بہار آ جائے گی. کبھی سنا کرو اور عمل کیا کرو. آپ بڑی قسمت والے ہو کہ آپ انسان میں پیدا ہوئے ہو, اور انسانوں میں مسلمان پیدا ہوئے ہو, اور مسلمانوں میں مسلک اعلی حضرت والے ہو. کتنا بڑا مقام آپ کا ہے. آپ اس نبی پر سلام پڑھتے ہو جس نبی کو آپ نے دیکھا نہیں, لیکن نبی کے نام پہ گھر سجایا ہے. نبی سے ملاقات نہیں ہوئی, نبی کے نام پہ نعرہ لگا دیا آپ نے. نبی سے کو کبھی آپ نے دیکھا تک نہیں ہے, لیکن نبی کے نام پہ جشن عید میلاد النبی کا ایک قافلہ نکالتے ہو محلے سے. بتاؤ مسلمانوں, جب قبروں میں اسی آقا کی دید ہوگی, اسی دن ہم غریب سنیوں کی عید ہوگی.
आज की ईद नहीं, गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर चांद के रात में सब लोग हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, गलियों में खुशी मनाए लोगों, ईद का चांद है, ईद का चांद है, कल ईद होगी, कल ईद होगी, कल ईद होगी। गौसे आजम चुपचाप अपने कमरे में। लोगों ने पूछा अब्दुल कादिर आप क्यों नहीं कुछ बोलते? खुशी तो मनाओ। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं तुम लोग खुशी मना लो, मेरी खुशी उस वक्त होगी जब ईमान को बचा के कब्रों में जाएंगे, वही मेरी ईद होगी। आजकल तो 30 रोजा मुकम्मल रखता भी नहीं और मत खुशी में उछलता है ना हजरत। अभी तरावी पढ़ेंगे, आपके हाफिज जी कौन है? इमाम साहब हाफिज इरशाद साहब, अल्लाह का करम है, किस्मत वाले हो, 20 रकअत तरावी पढ़ लेना रमजान। इतनी बरकत रमजान में हजरत, इतनी बरकत है जिसका कोई इंतहा नहीं रमजान में। हमने रमजान की जो बरकत देखी है, अभी आप जितने लोग बैठे हो कभी फल फ्रूट सेब संतरा खा के आए हो? घर में फल देखा अभी तक? सेब संतरा केला वगैरह अंगूर वगैरह कुछ नहीं, मरभत्ता आलू चोखा मक्का वगैरह। लेकिन जो ही रमजान शुरू, गरीब की झोपड़ी है, अफूस का मकान है, लेकिन वहीं देखिएगा सेब संतरा केला अंगूर सब कुछ सैनी में बर्तन में मगरिब होते होते सज जाता है। ये बरकत आती कहाँ से? कभी पता लगाया आपने? कभी सोचे आपने? आज वही आदमी, वही घर, वही पैसा, वही गाड़ी, लेकिन अभी सेब सामने से गुजर जाता है। अभी घर में फल फ्रूट घर में देखे, बाजार में ठेले में देखे होंगे, घर में नहीं। लेकिन मगरिब के होते होते रमजान में पूरा सज धज के, पूरा सजा के बहू बेटी ला के रख देती है। मगरिब का टाइम होता है, वजू का चेहरा, सर पे टोपी, सामने इफ्तारी, एक अजीब कैफियत होती है ना रोजेदार। कभी सोचे आपने? वो इबादत है, वो इबादत है जो इबादत की वजह से आपके घर में इतनी बरकत होती है। काश मुसलमान 12 महीना उसी तरह होता। मगरिब के टाइम में देखिएगा, ये बहुत खूबसूरत हंसी पूरे मुसलमान के घरों में डेली फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान 3 बजे से औरतें बनाना खाने लग जाती है। मगरिब होते होते सज धज के तैयार, अब रोजदार भी तैयार। 5 मिनट पहले इफ्तारी लेके बैठता है, क्या मोहम्मद 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले बच्चा भी टोपी पहन के बैठ जाता है, वो भी रोजा लेकिन बैठता है। इतने शौक होती है ना, अब वो भी टोपी लगा लगा के बाप के सामने बैठा है, इफ्तारी रखा हुआ है। अब वो 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, सामने खजूर है, फल है, फ्रूट है, खरबूज है, तरबूज सब रखा है, लेकिन खाली छूता है, खाता नहीं। ठंडा पानी का गिलास है, बार बार गिलास छूता है, पिएंगे रुको, छूने में मजा आता। मगरिब के टाइम गिलास छू के रख दे, अच्छा पिएंगे ठहर, तब तो बच्चों ने सोचता कि अब खाएगा तब देगा। कितनी खुशी होती, मन नहीं लगता। टाइम देते 3 मिनट मांग के, खजूर उठा के इधर, तरबूजा उधर, हाथ पलटते रहते, लगता है मगरिब इतना सुहाना वजू का चेहरा है। 16 घंटा से कुछ नहीं खाया, बार बार इधर उधर देख रहा है, लेकिन टाइम देखता है। जब तक टाइम नहीं खाएगा नहीं। रब फरमाता है फरिश्तों देखो देखो, घरदप्पा के तरफ देख, उधर देख जमीन के तरफ, मेरा बंदा 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया है, बार बार ठंडा पानी छूता है, पीता नहीं, बार बार फल फ्रूट देखता है, खाता नहीं, छू के छोड़ देता। वो मुझसे कितना डरता है फरिश्तों देख, मेरा खौफ खाता है। वो बंदा पानी नहीं पिएगा, अभी फल फ्रूट नहीं खाएगा, ये तमाम चीज खाने से, पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथ को मेरा बंदा उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, फरियाद करेगा, हल्का सूखा रहेगा, रहमत को, अल्लाह की रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये मगरिब के टाइम में ठंडा पानी छोड़ के, फल फ्रूट छोड़ के, रहमत अल्लाह की रहमत को पुकारा है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा जो मांग रहा है मगरिब के टाइम में, मांगने से ज्यादा दे दिया जाए। अभी रमजान में देखिएगा कपड़े के मार, 20 रोजा होते होते ले किशनगंज, दे किशनगंज, यहाँ नहीं तो मरतबा चलो पांचेपुरा में देख लेंगे, यहाँ नहीं चलो इस्लामपुर में देख लेंगे। अजब तमाशा, इम साल कोई भी बीबी को लेके बाजार नहीं जाना, एक साल रुको, एक साल 2026 में बीवी की मोहब्बत को जांच करने के लिए इमसाल आप लोगों को एक नुस्खा देते हैं। इमसाल कोई भी अपनी बीवी को लेके कपड़ा दुकान मार्केट मॉल लेके मत जाना, तू खुद जाना, बीवी का कपड़ा ईद में खरीद के लाना, बीवी के हाथ में देना और दे के खाली उसका मुंह हुआ देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले, आप लोग
आप लोग की बात नहीं बता रहे हैं, वो पूर्णिया मोड़ से उस पार आप लोग से आप मुकम्मल कुरान को हिफ्ज करके तुम हाफिजा बनी थी। ए बेटी, अब तो आखिरी वक्त अपने बाप का चेहरा देख ले, अब नहीं देख पाओगे, 4 फीट मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा। अब सुबह कयामत तक बाप का चेहरा तेरे सामने ना आएगा। तेरे बाप ने बड़ी मुसीबत से, बड़ी मेहनत से पाला था, बड़ी मोहब्बत किया था, सीने से लगाया था। तू ना खाती बेटी, तेरा बाप नहीं खाता था, तू ना सोती, बाप नहीं सोता था। ए बेटी, तू तो जिंदगी में ना देख सका, मरने के बाद तो देख ले। बेटी रोने लगी, ए मौला, ए परवरदिगार, अगर बाप का चेहरा देखने जाता हूँ तो शोहर का हुक्म टूटता है, और शोहर के हुक्म को मान लेती हूँ तो बाप का चेहरा छूट जाता है। ए मौला, एक तरफ बाप का चेहरा है, दूसरी तरफ शोहर की मोहब्बत है, शोहर के शरीयत का हुक्म है, शोहर के कानून हुक्म है। अगर शोहर के हुक्म मानती हूँ तो बाप का चेहरा छूटता है, बाप का चेहरा देखती हूँ तो शोहर का हुक्म टूटता है। अब क्या करें मौला? अब इस बीच में बेटी तड़प रही, बेटी रो रही, मौला अब क्या करें? कफन पहना के, गुस्ल दे के, आखिरी जनाजा कब्रिस्तान में लेके, कुछ लोगों ने कहा ऐसा करो ना, जब तुम जिंदा में तो नहीं आई, मरने के बाद भी नहीं आई, तो उसको लाग जाओ तो 2-4 आदमी दौड़ के आखिरी वक्त उसकी बेटी को कह दो कि अब थोड़ी ही देर में बाप को जमीन के नीचे रख देगा, अब तेरे बाप दोबारा नहीं लौटेंगे, तुम आखिरी वक्त चेहरा देख सकते हो। दौड़े दौड़े आया, का बेटी जिंदा में नहीं देखा, बीमारी में नहीं देखा, मौत हो गई नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने तेरे बाप को नहला धुला के, कफन पहना के, गुस्ल दे के कब्रिस्तान में ले जा रहे हैं, आखिरी वक्त जाके चेहरा देख लो। बेटी तड़प के रोने लगी, ए मौला, ए परवरदिगार, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे मौला? एक तरफ शोहर का के गया, जब तक मैं कुरान पढ़ के हिफ्ज करके वापस ना आ जाती तो घर से चौकर से कदम बाहर ना निकालना। अगर शोहर नाराज हो जाए तो रब नाराज होगा, अगर बाप की मोहब्बत छोड़ जाए तो दुनिया शिकायत करेगी। ए मौला, अब क्या करें? पढ़ी लिखी बेटी कुरान पढ़ी थी, उसने दिल में पढ़ा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबर करने वालों के साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। सब लोग बाप को दफन किया, अपने अपने घर लौट गए। सब लोगों ने बुराई शुरू, देखा, देख लिया, बड़ी बेटी को माथम चढ़ाया था, रखा था, बेटी है, कुरान पढ़ा रहा था, हिफ्ज़ करा था, हाफिजा बनाया, आलिमा बनाया, बड़ी फख्र करता था, देखा कैसी बेवफा बेटी निकली। बाप बीमार पड़ा, बेटी देखने नहीं आई, बाप मर गया, बेटी देखने नहीं आई, कफन के लिए कफन पहना दिया, कब्रिस्तान में रख के फिर नहीं बेटी। ये कैसी बेटी है? कितनी बेवफा बेटी है, कितनी बेअकल बेटी है, कितना, जितने मुंह उतनी बातें जानू, उस बेटी को सब चुगली की बात करने लगे। बुराई करते करते अपने अपने घर, लोग अपने अपने घरों में सो गए। बेटी अपने घर में तड़प रही है, बाप परदेश में कुरान, शोहर परदेश में कुरान रट रहा है, मोहल्ले के लोग सो गए, बाप का जनाजा कब्रिस्तान में पड़ा है, पूरे मोहल्ला सुनसान, रेगिस्तान की तरह सन्नाटा छाया है। सब लोग सो गए, ख्वाबों में सबकी नींद आई, ख्वाब में सब देख रहा है कि जिसको दफन किया था वो जन्नत के महलों में क्यारी में टहल रहा है, क्यारियों में टहल रहा है, उसका बाप, वो आदमी टहल रहा है, घूम रहा है। लोगों ने देखा कि आखिर ये मामला ऐसे इसके साथ हुआ कैसे? ये उतना बड़ा हाजी नहीं था, उतना बड़ा नमाजी नहीं था, तहज्जुद पढ़ता, इतने बड़े तो इबादत गुजार नहीं था, ये जन्नत गया कैसे, जन्नत में टहला कैसे? सब लोग हैरत में, ख्वाब में देख रहा, जिन लोगों ने बेटी की बुराई की थी, सब लोग देख रहे, ख्वाब में देखा, सब लोग देख रहा है, सब लोग ख्वाब में देख रहा है कि उसके बाप जन्नत में। लोगों ने पूछने लगा कि आपके साथ ये अल्लाह ने मामला कैसे कर किया, कैसे किया? कहा सुनो, मैं गुनहगार था, बदकार, सियाकार था, फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहा था, रब ने फरमाया, ए फरिश्तों रुक जा, अरे जिसकी बेटी इतने मुत्तकी परहेजगार हो, वो बेटी के सदक़े में जिसने अपने शोहर के हुक्म को टाला नहीं, शोहर के हुक्म को काटा नहीं, शोहर के हुक्म को रद्द नहीं किया, बाप का चेहरा छोड़ दिया, बाप का जनाजा छोड़ दिया, बाप का घर छोड़ दिया, लेकिन शोहर का हुक्म को टूटने नहीं दिया। ए फरिश्तों, गवाह हो जा, उस बाप को, उस